Well, let's start with Spin Doctor first. Why Spin Doctor? मेरा स्टार्टिंग में डीजे डॉक्टर नाम था। DJ Services, what was that one breakthrough moment? एक रात मेरे को बना नहीं सकती और एक रात मेरे को बिगाड़ नहीं सकती। डीजे एंड अ डॉक्टर, I got to speak to TEDx. That was a milestone. Then I worked with Divine. I worked with Sunidhi ma'am. That was one of my favorite gig of my life. मैं जब भी Divine के साथ DJing कर रहा था तभी इतने हम लोग के बड़े gigs नहीं होते थे, मतलब गिन के 100 जन भी आए तो बहुत बड़ी बात है। In a swank way, that's how we roll, chasing big dreams. Yeah, we're in control. In a swank. There is something special about a great DJ. They don't just play music, they take control of an entire room. If you have danced in India's wildest parties, chances are he's the one who lit them up. Spin Doctor. Started from the bottom, now we're leading the way. In a swank way, we're here to stay. So welcome back to another episode of In a Swank Way. I have Spin Doctor with me right now. What's up? What's up? So how are you? कैसे हो? बस बढ़िया चल रहा है, लाइफ इज गुड, गॉड इज ग्रेट, आई एम हैविंग फन। Yeah. So Spin Doctor. Let's start with Spin Doctor first. Why Spin Doctor? Initially like when I was DJing तभी मैं मेडिकल कॉलेज में था, अच्छा। तो मैंने सोचा कि मेरा नाम रखूंगा डीजे डॉक्टर। तो मेरा स्टार्टिंग में डीजे डॉक्टर नाम था। देन आफ्टर सम इयर्स वन डे रैंडमली मेरे मेंटर ने कॉल किया एंड इज लाइक ब्रो आई डोंट लाइक योर नेम, डीजे डॉक्टर बहुत ही वीक नाम है, आई वांट यू टू बी लाइक अ बिग पर्सनालिटी एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर नेम इज द स्पिन डॉक्टर। एंड ही जस्ट हंग अप लाइक रैंडमली मिडनाइट दारू पी के फोन किया है और As a mentor, as a friend, or who? मेरे is? मेंटर लाइक द पर्सन हु टॉट मी टर्निंग डीजे यूरी। अच्छा। So he randomly called, he hung up, and उसके बाद उसने he never called me again like in that week, and that name stuck in my head, the Spin Doctor. I was like, no, it's a good name. So I rebranded myself as the Spin Doctor, and now yeah, Spin Doctor is a good brand. Okay. Thanks to him. So we'll come back to Spin Doctor, but let's first go back to doctor क्यों करना चाहा? I mean, like when have you decided? So to be a doctor, basically it was my mother's dream. मेरे को तो इंजीनियर बनना था, मेरे को बनना था नासा का साइंटिस्ट बनना। But yeah, I was good in academics. Science was like my favorite, and but my parents, they were like, my mom is like, you know, you should be a doctor and help people. Okay, ठीक है, डॉक्टर बन जाती। डॉक्टर मेरा चॉइस नहीं था बनना, मम्मी का चॉइस था। Okay, then when that spin happened. वही फर्स्ट ईयर MBBS में when everything was like crazy, like you know, I felt like an alien, क्योंकि वहाँ पे इतने, मतलब मेरे को जो 12th तक लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस हूँ, स्मार्ट हूँ, बट when you go to medical college you see like more studious people and more crazy people than you, and then अभी लगता है कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और एक प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर को ईजी रख करने के लिए you need to pick some hobby, और मेरे पास पैसे नहीं थे गिटार खरीदने के, तो अगर डीजिंग कर लेते। अच्छा। So do you remember your first gig कब start हुआ? यार फर्स्ट गिग तो बहुत ही रैंडम ऐसा था, लाइक मैं डीजे भी नहीं था, मैं खुद को डीजे मानता था पर मैं डीजे था नहीं, मेरे को इतना कुछ आता नहीं था, बट मैं साइबर कैफे में एक बार जाता था एंड वहाँ पे एक बंदा था, तो उसको बोलता था मैं डीजे हूँ करके, तो उसका अंकल को कुछ साउंड वाउंड था, तो उसके अंकल को कुछ ऐसा हाउस पार्टी के लिए वो डीजे चाहिए था, तो दे कॉल में, मेरे को भी पता नहीं था मैं क्या बजा रहा हूँ, उनको भी पता नहीं था वो लोग को क्या चाहिए, तो इट वेंट ओके। 500 रुपये मिला था पहले गिग का, फन। अच्छा। And then professionally, when have you started? It's not like overnight you become a professional, like you know, you are an amateur, you are like a wannabe initially, and then you learn the skill, you master the skill, थोड़ा छोटा पार्टीज आता है, then थोड़े प्राइवेट पार्टीज आते हैं, थोड़े अच्छे कॉर्पोरेट गिग्स आने लगते हैं, then you get recognized, you get played in the club, so it's not an overnight process, मतलब it took me like 3 years to play my first club gigs after learning DJing. तो कितने साल हो गए, कब से कर रहे हो? 2007 से कर रहा हूँ DJing. Okay. So right now it's 2025. So yeah, it's a good long. I don't know if you remember or not. मैं like I attended your first year when I was in second or third year of my college. It was Valentine's party at Malad, some Galaxy or something. Oh हाँ, मेरे को याद है मलाड में। Yeah, I was there. हाँ, वो तो बहुत टाइम हो गया यार। Almost 12 हाँ, तभी like I just started like clubs and all, छोटा मोटा पार्टी कर रहा था। बड़ा like you know, it's a long career man, like बहुत सारा चीजें किया लाइफ में to be whatever I am right now. And it's not like overnight. लोग बोलते हैं ना overnight star कैसे बनना है यार। Lucky people become overnight star, but like majority of the people you have to be like consistent, लंबा खेलना पड़ता है, और वही patience का गेम है, पूरा patience का गेम। Okay.
तो भी इतने साल का जर्नी है, लाइक व्हाट आर द माइलस्टोन्स दैट यू, इफ यू वांट टू गो बैक, क्या क्या याद आता है, लाइक दिस वर माय टर्निंग पॉइंट्स? Turning points was first was like my battle DJ career जब मैं battling करता था and I used to win lots of battles. I won like more than 21 battles. Okay. So that is like one of my favorite part of my career. उसके बाद I started milestone was मैंने TEDx talk किया था. That was one of my milestones. कि हाँ like as a DJ and a doctor I got to speak to TEDx. That was a milestone. Then I worked with Divine. That was one of my peak career point. I worked with Sunidhi ma'am. That was one of my favorite gigs of my life. Like Okay. जिंदगी का सबसे अगर कोई favorite show कोई बोलेगा, so that was to be on stage with Sunidhi Chauhan. And अभी and then last 2 years been like really great for me. I've been touring worldwide. One of the best gig was Red Bull Dancers Stand World Final. Yeah, it was in like last December, right? हाँ, last 2024. December. हाँ, World Final. So that and अभी एक NBA का show बचा है मैंने. So yeah, like I'm doing like big gigs and it's fun. Like when you are there, like it's like bird eye view, तो कैसे लगता है? Oh, it's crazy. But I dreamt of that place. तो हमेशा मैनिफेस्ट किया है कि मेरे को उधर जाके खड़ा रहना है 8,000 10,000 लोगों के सामने. So when you are there, like you know, it's a different adrenaline rush, man. Like बहुत अच्छा hit होता है. It's like addiction. Like you want to go there again and Again and again. Like you want to do it again and again. more जितना भी ज़्यादा है उतना ही कम होना है. It's like an addiction. हाँ, crazy. So recently जो Red Bull event हो, what was so different about it? Yeah, it was a world final. So world final is like Olympics. Olympics में ऐसा होता है कि you have the best of the best contestant from around the globe. So, हर country का best dancer आएगा. And even to be present at on the stage is a blessing. But to play music for them, people who are like best dancers in the world, like no cap, they are like the best battle dancers in the world. Every country represented their best dancers, like including India, right? तो वो जो एक फीलिंग है ना, मतलब वो तो बहुत ही लकी होता है तुम कि तुम वो स्टेज पे सेम स्टेज पे उनके साथ हो एंड यू गेट टू प्ले फॉर देम. तो इट वाज इनक्रेडिबल मैन. मतलब मैंने मेरी लाइफ में इतने खतरनाक और इतने डेडली डांसर्स तो कभी देखे नहीं है. और द टैलेंट का जो एक बार होता है ना, वो लोगों ने ऐसा सेट किया था ना कि अभी मेरे को व्हेन आई प्ले लाइक नॉर्मल डांस इवेंट्स एंड ऑल, देन मैं लाइक बाय डिफॉल्ट मैं उसको वर्ल्ड फाइनल से कंपेयर करता हूँ. देन आई सी कि कहाँ पे स्टैंड कर रही है डांसर. तो इट गॉट माई लेवल अप एज अ डीजे, क्योंकि मेरा एक विजन खुल गया है कि डांसर्स का बेस्ट क्या हो सकता है. टॉप डांसर्स एमटी पॉप जिसने जीता हो क्या लेवल का पॉप कर सकता है. तो वो विजन खुलने के बाद अभी तो मेरा ऐसा है कि व्हेन आई सी अ डांसर आई फील लाइक वो वाओ ये कर सकता है, क्योंकि मैंने बेस्ट लेवल देख चुका हूँ. तो ये आदमी में और एक पोटेंशियल है, तो उतना हाथ पैर मार सकता है. Right, and you also mentioned about Divine, right? जब start हुआ था, I think I have, and we have also recently shot one hip hop episode where he has also mentioned, Yatin also mentioned about the journey initially कि कैसे हुआ. Yeah, Yatin was he's my college friend. Oh shit, 1-2-3 माझा नाम Yatin. I remember him. Yeah, so yeah, we were discussing about Divine, how it was in a initial journey कैसा था. So how was your experience with it? He was like a brotherly bond यार. मतलब he's still like a brother और मेरा भाई जैसा ही है. Whenever I need anything I can just call him up. Whenever he needs me, call him. So initially we were like we were doing hip hop, but hip hop was not popular. तो मैं जब डिवाइन के साथ डीजेइंग कर रहा था तभी इतने हम लोग के बड़े गिग्स नहीं होते थे. मतलब जिनके 100 जन भी आए तो बहुत बड़ी बात है. And from there to doing like big concerts and doing headlining slots, it was amazing experience. And Divine taught me the music business. Okay. Like musicality तो दोनों में हम लोग में equal ही थी. As a hip hop हम लोग जो सुनते थे, जहाँ से हम लोग ने inspire हुए. But the business, like how you conduct yourself as a musician, as a brand, in terms of dealing with a lot of corporates and stuff like that. So he was like very he's like Jay-Z of India, if I say. Like he knows his business. तो उससे मैंने बहुत business सीखा. उससे मैंने सीखा कि अपना stand कैसे रखना है. How can you flex your talent in front of people who doesn't know about it. So yeah, he told me how to stand my ground. Right. So बहुत सीखा हूँ. yeah, and then in your DJ career and DJ services, what was that one breakthrough moment कि जहाँ पे सब turn around हुआ? ऐसा नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ. It's a journey. It's a journey. Like it's not an overnight thing.
इट्स लाइक कि मेरा करियर ऐसा है कि एक रात में मैं स्टार नहीं बना हूँ। एक रात मेरे को बना भी नहीं सकती। मैं सबको बोलता हूँ कि एक रात मेरे को बना नहीं सकती और एक रात मेरे को बिगाड़ नहीं सकती। अगर मेरा एक गिग खराब हो गया दैट डजंट मीन आई एम अ बैड डीजे। और अगर मेरा एक दिन बहुत ही खतरनाक गया उसका मतलब ये नहीं कि मैं सुपरस्टार डीजे, बिकॉज वन नाइट यू आर अ सुपरस्टार, द अदर नाइट नोबडी नोज यू। So it's a journey with lot of ups and downs. Life is like it's not like left or right. It's like somewhere left right पूरा रास्ता है ऐसा left to थोड़ी सीधे जाएगी। हाँ मतलब it's a journey like you know मैं तो ऐसा define नहीं कर सकता हूँ कोई एक moment के which made me a big star or whatever. It was like even when I was with Divine, जब मैं उसके साथ तब था जब वो famous नहीं था, तो and then he became a superstar, तो उसके साथ साथ हम लोग भी ग्रूव किए। तो it was his journey with my journey, तो it's like a journey man, it's not a बहुत like अभी ज़माना है, लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट सेंसेशन, एक गाना हिट हो गया बहुत बड़ा स्टार हो गया, but they don't look back 10-12 years। हाँ बट वो बहुत ही अभी ये तो इंटरनेट का ज़माना है इसलिए, बट लाइक रियल करियर्स लाइक आर लाइक लॉन्ग सैड बोरिंग, अप्स एंड डाउन्स भी होता है, मतलब सब होता है। देयर इज अ मिक्स इमोशन मैन, लाइक वन डे यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड लाइक यू नो, ऑन द अदर डे लाइक यू आर नोवेयर। मतलब कभी कभी मेरे को अभी भी ऐसा सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार आई एम नॉट एबल टू गेट गिग्स दिस मंथ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो बेसिक या एक आर्टिस्ट के जीवन का यही है कि तुम्हारा जीवन स्टैंडर्ड नहीं है। बट देन हाउ डू आइडेंटिफाई कि ये वाला शो मेरा अच्छा नहीं गया? वो तो सेल्फ एनालिसिस से तुमको पता चलेगा। बट कुछ इंस्टिंक्ट्स रहेंगे कुछ। मेरा तो ऐसा है कि बेसिकली जब भी क्राउड नहीं आता ना तभी तुमको लगता है कि यार मैं क्राउड नहीं पुट कर पाया, सो फॉर अ डीजे दैट्स अ डिप्रेसिंग थिंग कि यार मेरे गिग में क्राउड ही नहीं आया। सो दैट्स वेयर टैलेंट वाइज मेरे में कोई कमी नहीं है, राइट? लाइक मेरे को पता है मेरा टैलेंट बहुत अच्छा है, बट आई कुडंट ब्रिंग पीपल लाइक टू बाय टिकट्स टू बी इन द क्लब। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक वो अभी तक मैं पॉपुलर नहीं हूँ करके। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मेरे गिग में इतनी लाइन लग जाती है कि मेरे को फ़ोन बंद करना पड़ता है कि आई कांट रिसीव एनीबॉडीज कॉल, सबको एंट्री चाहिए। Okay. तो वो टाइम पे लगता है अरे भाई तो वो बड़ा स्टार है, इतना सारा डिमांड है, लोग मतलब पागल की तरह कॉल कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट लाइक सब स्टैंडर्ड नहीं है। लाइक यार हम लोग के यहाँ पे ऐसा है कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और जिनके कॉन्स्टेंट अप्स होते हैं ना फिर उनका डाउन भी बहुत गंदा होता है। तो आई फील दिस इज लाइक अ बेट, आई एम इन अ रियली गुड पोजीशन कि मेरा अप्स भी होते हैं, मेरा डाउन्स भी होते हैं। तो मेरा जो डाउन्स है मेरे को हम्बल कर देते हैं और मेरा अप्स है मेरे को मोटिवेट करता है। Acknowledging, accepting is something good। हाँ आई तो एक्सेप्ट इट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं मतलब अभी और हार्ड वर्क हाथ पैर मारना पड़ेगा, अपन ने अभी तो कुछ अचीव नहीं किया है। कभी कभी लगता है वो वाह बहुत कर लिया, फिर नेक्स्ट डे तुमको वापस वो नीचे जाना पड़ेगा क्राउड में, तो तुम प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, तुम्हारा फीस ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। Right. Musa, I've seen your comment mentioning that please produce ABC DJ। हाँ तो बेसिकली वो उनसे मैंने बात कर रहा था, मैंने उनको बताया, मैंने बोला अरे सर ऐसा ऐसा है कि डीजे के बारे में भी कर सकते हैं ना। One app like that you are going to that's launch। my app Spin It Up। Spin It Up, yes। Very few podcasts also are like very popular about DJs। डीजेइंग का इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, और मतलब थोड़ा मिसनोमर भी है ना, मतलब इंडिया में बड़े डीजेस अब बड़े प्रोड्यूसर्स टेक्निकली। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया राइट, तो बहुत सारे लोगों का अभी भी वो मेंटालिटी है कि डीजे मतलब क्या 2-3 गाने मिक्स कर लिए हो गया। हाँ तो एग्जैक्टली डीजे का क्या काम होता है यार अभी? सो डीजे का काम तो एक्चुअली में मिक्स करना ही होता है, 2 गाने बजाना होता है। बट राइट नाउ what I follow is not that standard regime of DJing. Like mixing 2 tracks are very boring for me. I come from a category of DJs who are like very creative DJs who loves to create lot of new things on the floor, who wants to be updated with the technology. So अभी what I do like skillful DJing, वैसे बहुत कम DJs हैं इंडिया में जो एक्चुअली में हार्ड वर्क करते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द आर्ट, लर्निंग द स्किल। और ये आर्ट मतलब मैं तो टर्न टेबलिस्ट हूँ, तो अभी इंडिया में हैंडफुल ऑफ टर्न टेबलिस्ट है। मतलब टर्न टेबल पर अगर डीजिंग करने वाले डीजे से रहेंगे तो एटलीस्ट 10-15 रहेंगे, मतलब मैं गिन सकता हूँ उनको उंगलियों पे। और उसमें भी लाइक यू नो पीपल हु आर लाइक वेरी स्किलफुल, वो भी मतलब और कम हो जाता है अगर वहाँ पे अगर डेटा देखने जाए तो। ऑल ओवर इंडिया में डीजे का एक आइडिया मतलब इज़ अ वेरी वेग आइडिया कि अभी तो मतलब करंट ट्रेंड्स आर डिफरेंट कि अरे भाई कॉफ़ी प्लेस पे बजा लिया, इधर बजा लिया, क्राउड आ गया, लड़कियाँ पीछे खड़ी है तो दैट्स अ गुड डीजे। वो मतलब एक परसेप्शन हो गया है, मतलब इट्स काइंड ऑफ जेन ज़ी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम। वही एल्गोरिदम चल रहा है एंड आई आल्सो एक्सेप्ट इट। मैं उसको आई डोंट लुक डाउन अपॉन इट, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ लर्निंग द आर्ट फॉर्म। मतलब
आई कैन गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि 2 डांसर है, एक डांसर है जिसने सालों से आर्ट फॉर्म सीखा है, लाइक उसने कथक सीखा है, अच्छा। राइट, कथक सीखा है उसने, विशारद तक किया है, ठीक है। दूसरा एक डांसर है कि जो इंस्टाग्राम में 15 सेकंड की रील में एक ठुमका मार के फेमस हो गया। तो नाउ यू टेल मी हु इज द पॉपुलर डांसर, द रील पर्सन, राइट, क्योंकि एल्गोरिदम को वो चाहिए, वो एल्गोरिदम नहीं समझेगा ना स्किल सेट क्या होता है। वो स्किल सेट जिस इंसान ने 10 साल अपने करियर के दिए टू लर्न दी आर्ट फॉर्म, वो लोग नॉर्मल नहीं समझ पाते कभी कभी। बट दैट डजंट मीन वी ओनली फोकस ऑन द ठुमकास, बिकॉज देन वी विल लूज द आर्ट ऑथेंटिसिटी, और जो आर्ट फॉर्म है वो गायब हो जाएगा। तो मैं आई एम अ बिग आई वाउच फॉर दी आर्ट, और मैं उन डीजेस को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हु आर स्टिल लाइक फाइटिंग द ऑड्स एंड यू नो कीपिंग इट रियल। तो दैट वे आई फील लाइक, एंड मैं वही डीजेस में से आता हूँ कि आई वांट टू कीप इट रियल। हाँ, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू बी हियर, लाइक मैं ओवरनाइट स्टार नहीं बना, इट्स ओके, आई डोंट गिव अ डैम, बट मैंने मेरी आर्ट फॉर्म को इंटैक्ट रखा है, एंड यू नो आई मेक श्योर दैट मैं वो आर्ट फॉर्म को सारे बड़े लेवल पे लेके जाऊँ। और वो आर्ट फॉर्म तुमको एक कॉन्फिडेंस भी देती है, बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग इन अ रूम ऑफ पीपल हु आर जीनियसेस and you come from a background with real and authentic art form, then you can have a real conversation with them. and like you also need someone who will मैं अगर understand. टिकटॉक या रील वाला डीजे होता और मैं कोई मेरे को सुनीति मैम के साथ सेम स्टूडियो में बिठा दिया होता था, तो मैं तो 2 सेकंड के लिए ब्लाइंड ही हो जाता था कि भाई मैं करूँ क्या इधर, क्योंकि मेरे को तो आता ही नहीं जो करते। बट सिंस बिकॉज आई हैड लाइक 17 years का एक्सपीरियंस, यू नो, आई कुड टॉक म्यूजिक टू हर, आई कुड talk my music to her, my journey to her. She could understand that we like. So like that, there's this question comes in my mind कि जो जैसे कि विशारद किया, इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सिखा रहता है, राइट, एंड द म्यूजिक दैट यू प्ले, तो उसका क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग कैसे बैठाते हैं? ट्यूनिंग तो भाई वही तो सीक्रेट सॉस है। यू नीड टू लर्न हाउ टू अमेलगमेट द रियल म्यूजिक विद द करंट जेन ट्रेंड। मतलब वही मेरा, मतलब मैं डीजे सेट में वही करता हूँ कि मैं मोस्टली ओल्ड गाने लेके फ्लिप कर देता हूँ उसको नए वाले बीट्स में, एंड देन लाइव स्क्रैच वगैरह करता हूँ। तो आई शो माई स्किल सेट्स, एंड ऑल्सो आई बी लाइक म्यूजिकल टू पीपल, जिनको समझ आता है कि अरे अच्छा स्किलफुल सेट भी कर रहा है, एंड वैसा म्यूजिक भी बजाता हूँ जो पॉपुलर है, ताकि सब लोग खुश रहे। मतलब डीजे जॉब इज टू मेक एवरीबडी हैप्पी, टू बी ऑनेस्ट। You can't make 100% people happy, but if you make it like 90%, then you are a winner. Okay. 10% लोग तो हमेशा sad रहेंगे। You can't make everyone happy. True. And then who are your favorite DJs? My favorite DJs is DJ Premier, DJ Qbert. मतलब लोगों को पता ही नहीं वो कौन है। वो लोग like very underground and you know battle DJs and scratch DJs. So I love them. बस वैसे ही है, मतलब सब अंडरग्राउंड डीजेस है। प्रीमियर इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डीजेस इन हिप हॉप सीन, ही इज माय फेवरेट डीजे, और जैजी जैज करके है, सो दे आर लाइक वेरी बिग हिप हॉप डीजेस एंड आई लव देम। Okay. And we were talking about this social media and content creators, right? Yeah. So how do you perceive yourself कि आपका जो प्रोफाइल आता है, like what kind of activities you do? यार I'm trying hard to be honest to blend in the whole new trend, new generation. And it is not easy, first of all, because even those guys, they know the algorithm, and you are like a old school mind, so to be in the same algorithm तुम्हारे लिए time लगता है। However, the brand building which you have done for like all these years helps you a lot. So जब कोई बड़ी brand है who wants to put in money, तो वो लोग भी 2 बार सोचते हैं कि नए इंसान पे डाले, एक्सपीरियंस इंसान पे डाले, बिकॉज उनको पैसा डालना है। एंड मैं मतलब I also try to do something or the other out of the box, और उसमें से कुछ ना कुछ क्लिक हो जाता है। मतलब मैं भी I try to keep the track of the trend. Also I try to innovate something which is gonna be a trend. Yeah. तो कभी-कभी क्लिक होता है, like 10 अटेम्प्ट डालेंगे तो उसमें से 6 अटेम्प्ट तो फेल होते हैं, लेकिन 4 अटेम्प्ट चलते हैं। Yeah. And looking at your social media also and the personality that you are carrying, so any styling that you are following कि नहीं यार, वो एक ये मेरा इनबिल्ट है, मेरा स्टाइल गेम है ना, मतलब पहले डे 1 से मेरा हार्ड है, पता नहीं क्यों, बट वो मेरा स्टाइलिंग गेम बहुत अच्छा है पहले से। like कैसे डिसाइड करते हो? It's a inbuilt thing, like you should have an eye of like you know eye of what is gonna look cool on you. तो एक आंख होती है, वो तुम किसी को सिखा नहीं सकते स्टाइलिंग, वो Because I've seen that one outfit on that Hip Hop India show, right? So the big shoes that you're wearing. मिशीफ के शूज पहने थे। Yeah. हाँ, that was like you know मेरे दोस्त की स्टोरी में गया, मैंने बोला ये शूज कूल है, पहनते हैं। बोलता हाँ तू पहन सकता है। I was like हाँ मैं पहनेगा, let's do it. तो then we figured out like कि वो बड़े शूज, and
we'll wear something red jacket on top of that and it will go good. फिर मैं बोला बाल का क्या करना है, तो वो दिन मेरे को बाल पे ग्राफिटी करना था, तो जो बेचारा ग्राफिटी वाला लड़का है उसको मैंने बोलना भूल गया एक दिन पहले कि कल सुबह आने का, तो नेक्स्ट डे उठा नहीं। फिर ऑन द स्पॉट हम लोग ने सोचा क्या करेगा, तो मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बोला एक काम कर, हाँ तो तू मुंह पे पेंट लगा के किस कर, तो उसने कुछ ऐसे किस के मार के हेडशॉट। हाँ तो वो सब लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट तो वो बन जाता है अच्छा चीज़ है। मतलब मेरे हिप हॉप इंडिया के सारे आउटफिट मतलब हम लोग ने ऐसा मतलब कुछ किसी से प्लान वैन नहीं किया, हम लोग ने बैठ के खुद ही डिसाइड करके, मैं विराज जो मेरा स्टाइलिस्ट है, वे सेट टुगेदर एंड यू नो फिगर्ड आउट, आधा उसने फिगर आउट किया आधा मैंने फिगर आउट किया। बट मेरे को पसंद है वो चीज़ करना, और कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, दे आर जस्ट यूज्ड टू यू नो हैविंग अ स्टाइलिस्ट हु गिव्स देम व्हाटएवर दे वेयर इट। But you experiment. I actively take part in it because I like fashion. And how was the show? Oh, amazing. TV is a different ball game altogether. मतलब मैंने सीखा बहुत सारा, मैंने समझा कि how the shoot thing works, you know, how that whole reality thing works. Different experience because live में अलग होता है, reality में अलग होता है. However, it was like one of my best experience of my life because the way I got treated on the set, very nice, and I'm so happy. The Frame Production and Amazon, they've been amazing to me. Remo sir especially, I love Remo sir. मैंने expect नहीं किया था कि I'll find a friend in him. Yeah, Remo sir, I've seen your comment mentioning that please produce ABC DJ. हाँ तो basically वो उनसे मैंने बात कर रहा था, मैंने उनको बताया, मैंने बोला अरे सर ऐसा है कि डीजे के बारे में भी कर सकते हैं ना, Anybody can DJ. तो उनके दिमाग में भी वो चल रहा था। उन्होंने बोला था कि भाई मैंने पूरा, he is a very well researched man भाई, रेमो सर he knows hip hop, like see he comes from a like लोगों को लगता है बॉलीवुड बैकग्राउंड से, but that man is doing hip hop since we haven't even heard about hip hop, like you know he knows this thing, he's a legend for no reason. ऐसे ही लेजेंड बने नहीं है भाई, ऐसे मतलब बहुत बाल सफ़ेद किए थे उन्होंने। तो रेमो सर से मैंने बात किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ब्रो, मतलब मेरे आइडिया दिमाग में चल रहा है, वो सब चीज़ें बहुत पहले से चल रहा है। तो तेरे को देखा तो मेरे को और ऐसा फील हुआ कि हाँ उस पर मेरे को थोड़ा काम करना चाहिए स्टोरी पे। ही इज़ आई डोंट नो इज कुकिंग और नो, बट ही टोल्ड मी लाइक यू नो मेरे दिमाग में चल रहा है ये चीज़। रेमो सर very genius person, again very down to earth and humble. Shakti, I have been following her since Dance India. Shakti was a very sweetheart. Dharmesh and Raghav won my heart. They were like so nice to me, and the way they appreciate me, like you know, the dance community, entire dance community has been nice to me, very kind to me. They love me, you know. Dharmesh बोलता है कि भाई whatever you have done for DJs in the dance community, like you are recognized as a DJ in community, तो मतलब तुमने कुछ अच्छा किया है। तो I felt great कि हाँ जिंदगी में इतना मेहनत किया तो कुछ तो काम आया कि all these legends are recognizing me or the art form, like you know, even if it is not me, my name, I don't care, but at least they are recognizing DJing as an art form, right? Yeah, because on TV at least हाँ you representation हुआ ही नहीं है yeah. DJing का इतना अच्छा लेवल पे, तो that and was I think great. if you see there are very few podcasts also who are like very popular about DJs. हाँ तो वही डीजेइंग का इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, और मतलब थोड़ा मिसनोमर भी है ना, मतलब इंडिया में बड़े डीजेस आप बड़े प्रोड्यूसर्स टेक्निकली, तो प्रोड्यूसर्स और डीजेस को मिक्स कर देते हैं। तो आई फील लाइक And talking about this content, again going back to the brand promotions and everything, how brands are approaching you guys? मेरे को ब्रांड्स दे वांट टू डू समथिंग डीजे रिलेटेड कंटेंट, एंड आई फील लाइक आई जस्ट गिव देम लाइक स्पाइसेस, लाइक जो भी तुमको करना है मैं मेरे हिसाब से करूँगा। I'll add my skills and turntablism skill in it, and you see how it like it goes for you. तो ब्रांड का मतलब उनका चलते रहता है ऊपर नीचे, उनके भी मतलब थोड़े बेसिकली डीजिंग थोड़ा लिमिटिंग हो जाता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग। अभी एक्टिंग करना है तो स्टोरी टेलिंग बन जाता है, बहुत सारे स्किट बन जाते हैं, मैं खुद बना दूँ ऐसे लिखने में, तो कह रहे ये हो गया वो हो गया, लाइक ब्रांड कह रहा हूँ। बट फॉर अ डीजे इट्स वेरी लिमिटेड, एंड उसमें भी तुमको खेलना है, तो आई ट्राई टू मेक लाइक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस फॉर पीपल के जो भी ब्रांड के रिलेटेड ऑडियो है उसको लेके मैशअप करूँ, स्क्रैच वैच करूँ, और थोड़ा फनी ट्विस्ट डालूँ उसके अंदर। ट्राई कर रहे हैं लाइक ब्रांड में डीजिंग को इनकॉर्पोरेट करने का, थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। आई बीन डूइंग लाइक आई हैव डन वर्क फॉर Bacardi and Jameson and a lot of brands. It's good. Okay, do you think that is also one of the opportunities? Yeah, like that's one of my money making place also. Like I'm not making a huge money from brand deals, but since I am like established as an artist, so even if I don't have any followers, if they want any DJ related content, they will have to pay. So I don't do brand deal for free.
तो But that's what I mean. Like this is Yeah, you also make one of money. the opportunities yeah that it's one of the way, like you know, DJing पे आप खाली shows से पैसा नहीं कमाते हो, आप बहुत सारी चीजों से पैसा कमाते हो, and one of them is brand deals. Like I do lot what of are other sources? The prime mara 90% is DJing, right? And second is the brand deal, like influencer content. Third, I would say TV, which is opened up for me right now. TV is an incredible platform to make money, like incredible. वहाँ से you can actually gain a lot of traction, a lot of followers. मेरे followers बढ़ गए एक TV show करके. तो TV helps you a lot. Like so DJs can make money from TV also, I feel. बाकी थोड़ा साइडिंग इधर उधर इन्वेस्टमेंट वगैरह वो तो कर लेता हूँ थोड़ा गूगल करके. So currently, which DJ machine and DJ player you are using for your DJ sets? For my DJ sets, I'm using Pioneer PLX 1000. It's a turntable. और मेरा जो mixer है that is DJM S11. तो वो Pioneer का ही है, same company. Because I rep also them. Like I'm a official DJ for Pioneer DJ India. Oh. So yeah, that's my DJ machine setup. Okay, and like before entering, or maybe like before starting, how do you feel before like that 1 minute before you go on the stage? When यार you मेरे अंदर तो मतलब like as soon as I know like I have to play, like I'm pumped up automatically. It's a inbuilt adrenaline rush, you know, like you know, because I get very excited. I love my job, and when I get to go on the stage, it's an incredible feeling. तो मैं हमेशा excited होता हूँ. मैं कोई चीज़ के लिए excited हूँ ना हूँ, कंसोल पे जाने के लिए हमेशा excited होता हूँ. Okay, and what are your favorite genres that you like to mix? Right now my favorite genre is drum and bass, but like I'm a core hip hop DJ. But now since hip hop is not that widely accepted everywhere, so I switched myself to an open format DJ. And open format में मैं सारे genre बजाता हूँ, like hip hop, house, bass, dubstep, trap, थोड़ा बहुत Bollywood. But in that drum and bass is my favorite part. Like मैं आजकल drum and bass बहुत बजाता हूँ. Okay, what is so special about it? It's very energetic, very high intensity. मतलब बहुत aggressive है, and it like you know it's like finisher. It's like proper finisher. Like, किसी को अगर drum and bass feed करोगे तो वो लोग थोड़े पागल हो जाते हैं. It's like death metal but super fast. Nice. And also I researched about one app like that you are going to Yeah, launch. that's my app. Spin It Up. Spin It Up, yes. तो बेसिकली मेरे को मैंने I've been DJing since 17 years, right? और मैंने तो छोटे से ऊपर तक आया हूँ. तो मैंने रियलाइज किया कि DJs लोग का एक तो फर्स्ट थिंग इज DJs are not making enough money. Like very like they are making peanuts, to be honest, especially the resident DJ. And when you are DJing, तुमको आके कोई भी डिस्टर्ब करेगा, बोलेगा ये गाना बजा, वो गाना बजा, या तो कोई बोलेगा इसका नाम अनाउंस करो, इसका नाम अनाउंस करो. ये सब DJ करते हो, उसका रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता है. मतलब you just do it. Even if you don't want to do it. So I was like, why not get a technology in it and like you know you connect the patrons or partygoers with DJ, and in that process DJ should get rewarded. मेरा हमेशा वही फंडा था कि DJ को रिवॉर्ड मिलना चाहिए कोई भी चीज़ का. So in terms of what, like कैसे? तो बेसिकली DJ अपना QR कोड जो भी है वो हर जगह पे प्लेस करेगा वेन्यू पे, एंड अगर किसी को कोई भी गाना रिक्वेस्ट करना है तो it doesn't have to go to the DJ. You can just scan the QR code. So पूरा Spotify का लिस्ट आ जाता है, तो you can search whatever song you, और DJ can decide कि उसको एक गाने का कितना पैसा लेना है. तो DJ can fix the price of the song and shout out. And once you pick your song, you just send a request to the DJ and you pay the money whatever DJ is fixed. And अगर DJ को accept करना है नहीं करना है वो भी उस पर डिपेंड करता है. उसने accept किया तो the money comes to DJ and DJ has to play the song. Simple, बहुत ही simple. Interesting. Nice. It is interesting. And I want like you know कि DJ should get rewarded. मेरे को तो वही है कि I want my community. I'm representing DJ. But isn't it distracting or irritating while like people are just कोई आएगा बाजू में कान में रिक्वेस्ट करेगा, उससे अच्छा तो ये बेटर है ना कि तेरे को नोटिफिकेशन आ रहा है. If you want to accept it, if you want to make extra money, you will take one extra effort to go on your phone and. No. I am talking about that only. Like, isn't it distracting that when you are playing, someone comes to your desk? हाँ एग्जैक्टली. तो वही माइनस करने के लिए ऐप बनाया ना कि अभी कोई आएगा नहीं. अभी तेरे को ऐसे भी फोन हम लोग यूज करते ही है डीजेइंग करते हैं, 5 सेकंड एक नोटिफिकेशन तो देखते ही है कोई ना कोई. तो मेरे को नोटिफिकेशन आया वो किसी ने गाना रिक्वेस्ट किया ये वाला और मेरे को पैसा मिल रहा है, तो मैं स्वाइप राइट करूंगा और नेक्स्ट 10 मिनट में गाना बजा दूंगा, तो पैसे भी मिल जाएंगे और गाना भी बज जाएगा, सामने वाले भी खुश, मैं भी खुश. स्वाइप राइट करके कुछ अच्छा मिलेगा. हाँ फर्स्ट थिंग, हाँ स्वाइप राइट, पहली बार स्वाइप राइट करके पैसा आएगा.
And with the AI technologies, like how are you going to make use of it, or are you using any technologies? या आई एम यूजिंग AI बेसिकली इन स्टेम्स. हम लोग का एक स्टेम्स करके एक फीचर है विच इज सॉर्ट ऑफ AI. तो स्टेम्स क्या करता है कि तुम्हारा कोई भी गाना है ना, उसमें से वोकल निकालना है तो वोकल निकाल देता है, ड्रम्स निकालना है तो ड्रम्स निकाल देता है. तो तुमको खाली इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्पॉट बन जाता है. वो सिर्फ वोकल चाहिए तो ऑन द स्पॉट बन जाता है. तो दैट टेक्नोलॉजी, एंड आई एम लाइक अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी गाय ब्रो. आई लव टेक्नोलॉजी. मैं बहुत हमेशा अपडेटेड रहता हूँ. लाइक आई एज अ डीजे That engineering is still या there. वो तो है डे वन से. तो इसलिए मेरे को चाहिए कि डीजेस लोग जितनी नई टेक्नोलॉजी आई यूज़ करो. मतलब आप आलस मत करो. सब लोग क्या करते हैं, दुकाने मिक्स करते हैं, बकवास पे ध्यान देते हैं, एल्गोरिदम पे ध्यान देते हैं, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, जो एक्चुअली तुम्हारे डीजिंग का लेवल अप लेके जा सकती है. तो स्टेम्स इज द बेस्ट AI टेक्नोलॉजी विच केम टू डीजेस like 2-3 years. It's been years since 2-3 years now, and I've been using like it left, right, and center. It has made my life so good, easy. And is there any technique to learn this DJing? टेक्निक तो मतलब बहुत सारी है बेसिकली. मैं तो बोलता हूँ जिसको अगर सीखना है ना, वो तो यूट्यूब से भी सीख सकता है. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. देयर आर सो मेनी ट्यूटोरियल्स इन यूट्यूब आल्सो. बट आई फील यू शुड हैव अ मेंटर. जस्ट गो टू अ मेंटर, यू नो, because you can learn the techniques but you can't learn the experience online. So you need to, if you want to learn an experience, you need to have a person who can tell you कि एक रूम में अगर लोग खड़े हैं, तुम म्यूजिक बजा रहे हो और वो लोग तेरा म्यूजिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, कैसे फ्लिप करोगे. ये सब चीजें तुम ऑनलाइन नहीं सीख सकते. How it feel like when you are playing something? Of course, अपना तो इंटेंशन यही रहता है कि हाँ हम लोग खुश करे लोगों को, but sometimes it doesn't go well. या तो वही ना, तो यू दैट इज द आर्ट ऑफ द डीजेइंग. वो बहुत सारे लोगों को नहीं आती. आजकल के न्यू जनरेशन ऑफ डीजेस ना, वो लोग 1 घंटे का सेट बना के चले जाते हैं, बजाते जो उनको पसंद है. बट टू रीड द रूम और लोगों को समझना, लोगों के जहन को समझना. मतलब मैं जब भी कंसोल पे जाता हूँ ना, तो मैं 2 गाने में समझ जाता हूँ कि लोगों का मेंटालिटी क्या है, उनका म्यूजिक का टेस्ट क्या है. वो मेरा मतलब that's what I learned over the years. Experience. Yeah, it's an experience. So you learn, like when you are in a room, you learn कि लोगों को क्या पसंद है. You see 2-3 people, उनका एनर्जी समझो, उन लोगों को जज करना आना चाहिए तुमको. अगर तुमने अगर उनको राइट पकड़ लिया और वही टाइप का म्यूजिक बजा के उनको एक जर्नी में घुमा दिया, तो then you are the best DJ for them forever. Okay. And like while reading the room, what are those instincts that you get कि हाँ ये समझ में आ जाता है? First is like, you know, मैं देखता हूँ कि एज क्या है, एज ग्रुप क्या है. तो एज ग्रुप के हिसाब से यू सी कि अगर न्यू एज है तो बहुत सारे जेनजी है. उसमें से यू सी वो लोग दे स्टाइल, लाइक कपड़े वपड़े क्या पहनते हैं, तुमको पता चलेगा कैसे घर का लड़का है, क्या टाइप का म्यूजिक सुनता रहेगा. एंड उसके अराउंड लाइक यू नो यू प्ले वॉट एवर म्यूजिक दे. आप कुछ लोग का लाइक पर्सनैलिटी होता है. लाइक सम इफ आई हैव अ रूम फुल ऑफ डांसर्स, तो आई अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे नहीं 15-20 डांसर्स है, तो उनको पता है कि डांसर्स लोग के टाइप के गाने क्या है. तो यू नीड टू फिगर आउट कि क्या टाइप के लोग हैं. अगर मैं जो रूम में बजा रहा हूँ, वो रूम में रैपर्स लोग हैं, तो मेरे को पता है कि रैपर लोग को ओल्ड स्कूल रैप म्यूजिक बजा वो तो दे कैन कनेक्ट विद दैट, क्योंकि वो लोग वो म्यूजिक सुनते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे रूम में कौन है, क्या टाइप के लोग हैं. कॉलेज स्टूडेंट्स है तो कॉलेज स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं. तो यू नीड टू बी अप टू डेट विद एवरीथिंग एंड यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंग टू दैट. So that's what I feel as a DJ. You should learn how to read the room. Oldies का रूम है तो oldies लोग क्या पसंद करते हैं. अगर मेरी एज का वो है लाइक 30+ है, तो वो 90s के म्यूजिक पे ज़्यादा ट्रिप करेगा क्योंकि उसको नॉस्टैल्जिक फील होएगा. तो आई प्ले 90s स्टफ फॉर देम. तो वैसा ही है, सिंपल. So जो अभी DJ एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं, जो नई जनरेशन है, लाइक एनीथिंग दैट यू वांट टू हाईलाइट और एनी एडवाइस? न्यू जनरेशन डीजेस को एक ही एडवाइस है कि भाई सब टाइप का म्यूजिक सुनो, सब टाइप का म्यूजिक समझो, एंड ट्राई टू लर्न हाउ टू प्ले लॉन्गर सेट्स. सिर्फ 1 या 2 घंटे में अपने आप को लिमिट मत करो. जस्ट गो लॉन्गर इज द बेटर. And coming back to the performances, like anything that you remember, like something weird happened or weirdest memory that you have? Weirdest memory or funny or something like? फनी मेमोरी तो भाई बहुत है यार. फनी मेमोरी में तो यू जस्ट कांट हेल्प यार. फनी मेमोरी में तो अभी मेरे साथ हुआ है रिसेंटली, लास्ट वीक. मैं एक क्लब में बजा रहा था और मेरे पे पैसे उड़े थे. 90,000 रुपीज उड़े थे. Wow. You collected? हाँ 8,000 रुपये ले गया, 30,000 रुपया वो मैनेजर मार गया. बट लाइक it was funny also and it was weird also कि इतना सारा पैसा मेरे पे उड़ा है. क्रेजी पैसा उड़ा है मेरे पे. क्रेजी था वो. Okay, nice. And anything awkward happened?
ऑकवर्ड तो मेरे से इतना कुछ हुआ नहीं आज तक. आई डोंट थिंक सो. आई रिमेम्बर एनीथिंग ऑकवर्ड. Okay. सबसे ज्यादा ऑकवर्ड तो वही होता है कि लोग आके अनॉय करते हैं. ऑकवर्ड से ज्यादा अनॉइंग होता है कि लोग आके रिक्वेस्ट करते हैं ये बजा. How do you tackle with it? यार यस I know the app, but मेरा तो फंडा वही है. मैं बोलता हूँ हाँ आज मैं बजाता हूँ. और मेरे को अगर बजाना होगा तो मैं बजाऊंगा, नहीं बजाना तो नहीं बजाऊंगा. सिंपल है. अभी तो मेरे पास मेरा ऐप है तो मैं सीधा बोलूंगा QR कोड स्कैन करो. 90,000 उड़ाओ मत डालो. ऐसे तो हाँ 30,000 जाएंगे. टैक्स वैक्स भरेगा यार. कैश में नहीं जाएगा. we'll go totally digital. Yeah, nice. So with this, very happy that you are here. Thank you so much for sharing all these insights. I hope it will help DJ lovers and the professionally who wants to get into DJ. So yeah, thank you. Thank you, man. Thank you for calling. It's fun. It's great. It's always fun to talk about my community, my art form, and my favorite part, DJ. Yeah. Cool, thanks. I'm sure after today's episode, no one will say doctors are boring. If you have any interesting and weirdest question, you can drop in the comment section. Spin Doctor will answer them. And I'm sure you have liked the content. So if you're enjoying these episodes, then please do hit subscribe button, share this episode with your friends and families, and do watch for more content. Thank you.